ونیزے کا وجود انگاروں پہ لوٹ رہا تھا۔ اسے کسی کل چین نہیں تھا۔ آج 3 دن اس قصے کو گزر چکے تھے اور وہ ایسی نظر بند ہوئی تھی کہ اپنے ڈیڈ تک سے نہ مل رہی تھی، بس اپنے کمرے میں بند وہ جیسے شہروز خان کے لفظوں میں خود کو گھول رہی تھی۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کی ماں نہیں تھی۔ یہ اس کا قصور تھا کہ اس کا باپ سیاست میں ہونے کے باعث اس پر ایک لمحہ بھی اپنا ضائع نہیں کرتا تھا۔ اس کا قصور نہیں تھا یہ کہ اس کے گھر میں آنے والی مختلف خواتین ایسی ہوتی جن کو دیکھ کر وہ پل بھر کر بڑی ہوئی، اور پھر اس کی شخصیت ایسی بن گئی کہ وہ شخص سب کے سامنے اسے ذلیل و خوار کر کے اب گالیاں دے گیا۔ وہ اسے سب سے الگ لگا تھا۔ ہاں، اس کا اگنور کرنے والا انداز اسے جدا لگا۔ اس کا دل شہرز خان کی پرسنالٹی سے متاثر ہو چکا تھا، مگر اس نے یہ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کی تذلیل کر کے اچھا نہیں کیا۔ سب کے سامنے اسے گالیاں بک کر اس نے ونیسے کے دل و دماغ کو جیسے بھسم کر دیا تھا۔ وہ بے ترتیب حلیے میں 2 3 پرانے نائٹ ڈریس میں سرخ نم آنکھوں کے ساتھ بیڈ پہ پڑی چھت کو گھور رہی تھی، جبکہ اس کے دماغ میں صرف ایک شخص تھا اور وہ شہروز خان کے سوا کوئی نہیں تھا۔ یہ بغیرت ذلیل لڑکی ہی تمہاری زندگی کا حصہ بنے گی، پرسا شہروز خان، وہ آہستگی سے بڑبڑائی۔ پھر دیکھتی ہوں تم کیسے اپنی غیرت کی حفاظت کرتے ہو۔ آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا اور ایک جھٹکا کھا کر اٹھی، بالوں کو مٹی میں جکڑ لیا۔ آنکھوں سے لاتعداد آنسو گرے تھے، مگر اس کے چہرے پہ ہلکا سا بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ چھپ کر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس نے صرف اتنا سوچا تھا، آگے کیا ہونے والا تھا یہ شہروز خان کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی۔ ابان کو ارشد سے مل کر بھی مایوسی ہوئی تھی کہ ارشد کے پاس سے ایسی کوئی بھی بات نہیں ملی تھی۔ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ کس نے اسے مارا تھا اور کیوں، جبکہ اس کے باپ نے ایس پی کے انڈر یہ کیس دیا ہوا تھا، جس کی ایس پی کے نزدیک وہ پوچھ پڑتال کر رہا تھا۔ ابان بالکل الجھ چکا تھا۔ حرم کا ملنا اس کے لیے زندگی موت کا معاملہ تھا۔ اگر حرم نہ ملتی تو اس کے ساتھ کیا ہوتا، یہ سوچ کر اس کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ جبکہ حرم کو نہ جانے آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی۔ وہ اس وقت خان ہاؤس کے لان میں بیٹھا تھا، حرم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کا فون بجا۔ اسے نمبر دیکھا اور یکدم الرٹ ہوا، مگر فون اٹھانے کی ہمت خود میں نہ پائی۔ کیا مصیبت ہے یار، وہ جھنجھلا کر بولا، تبھی کال بند ہو گئی۔ اس نے سکھ کا سانس ہی لیا تھا کہ پھر سے کال آنے لگی۔ کاش حرم تم مر جاتی اور تمہاری لاش ہی میں اس میڈیا کے حوالے کر کے آزاد ہو جاتا تو میری جان تو سولی پر نہ لٹکتی ہوتی۔ ابان نے غصے سے سوچا اور کال پھر سے بند ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کال آنے کا ویٹ ضرور کیا، مگر دوبارہ کال نہ آئی تو وہ کچھ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ دوبارہ ایس پی کی طرف اس کا دھیان گیا تو اس نے شامر کو کال ملا لی۔ بیل جا رہی تھی، جبکہ ایک بیل پہ شامر اس کا فون اٹھا لیتا یہ ممکن نہ تھا، تبھی دوسری اور تیسری بیل پر کال بیک کر لی گئی۔ ایس پی صاحب، اتنے اہم کیس میں جس میں آپ کے سینئر بھی ملوث ہیں، اس کو چھوڑ کر کل آپ چھٹی ہرا رہے تھے اور آج بھی آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اس نے بھرپور طنزیہ انداز میں شامر سے گفتگو کا آغاز کیا، جبکہ دوسری طرف شامر جو اپنے یونیفارم میں گھر سے نکلنے والا تھا، ایک نظر حرم کو دیکھ کر جو ویسے ہی سوئی ہوئی تھی، سکینہ کو ہدایت دے کر اس کا خیال رکھنے کا گھر سے باہر نکلا۔ تبھی ابان کی کال آئی۔ اب شامر کو اس کے طنز ایک آنکھ نہ بھائے تھے۔ مسٹر ابان، کیا لڑکی کے باپ لگتے ہیں آپ؟ اس نے بھی سنجیدگی سے ابان سے پوچھا تو ابان مٹھیاں بیچ کر رہ گیا۔ نہیں، مجھے لگا باپ یہ بھائی ہی لگتے ہیں جو اتنا تل ملا رہے ہیں۔ میں نے نہیں بھگایا، جو روزانہ مجھے فون کڑا کر ڈسٹرب کرتے ہیں۔ جب مل جائے گی تو آپ لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی۔ دوبارہ میرے نمبر پر کال کرنے کی زحمت نہ کرنا، صفدر کا نمبر اسٹیشن سے لے لیں۔ اس نے کھری کھری سنا کر فون بند کر دیا، جبکہ ابان غصے سے موبائل پٹک کر رہ گیا۔ پہلے کم مصیبت تھی جو حرم نے ایک اور مصیبت ڈال دی تھی، اور اوپر سے یہ بد دماغ ایس پی۔ وہ پولیس اسٹیشن پہنچا تو اسے کافی وقت لگ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک چکر گھر کا لگا کر آیا تھا۔ اماں کو تسلی دینی تھی، ورنہ 3 دن اس کی غیر حاضری پر وہ مزید پریشان ہو جاتی۔ جب وہ اسٹیشن پہنچا تو اپنے کیبن میں رضا خان کو دیکھ کر اس کا دل ہی نہیں کیا کہ دوبارہ کیبن میں جائے بھی، مگر خود پہ کنٹرول کرتا وہ اندر گیا۔ اس وقت رضا خان کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ صفدر نے اسے سلام کیا تو وہ جواب دیتا اپنی چیئر پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا اور رضا خان کی جانب دیکھنے لگا جو اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم ہو بہو میرے جیسے ہو، مدھم سی آواز پر شامر نے پھاڑ کھانے والی انداز میں ان کی جانب دیکھا۔ کھڑے ہو، بے قابو ہوتا ہوا بولا، جبکہ صفدر سمیت رضا بھی شرمندہ ہو اٹھا۔ یکدم اس کی اس حرکت پر وہ رہا دروازہ دفع ہو جاؤ، وہ بلا لحاظ کے بولا، باپ ہوں میں تمہارا۔ رضا صاحب شکستہ لہجے میں بولے، جبکہ شامر کے اندر طوفان اٹھ رہے تھے۔ او، اچھا لگا مجھے میرا باپ مر چکا ہے۔
अ, ओह अच्छा, मुझे लगा मेरा बाप मर चुका है। नहीं, बल्कि मेरे दिमाग में से बाप का नाम का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ही बाप ने उखाड़ उखाड़ दिया है। तो ये ड्रामेबाज़ी की क्या तुक है? वो बामुश्किल एक-एक लफ्ज़ चबाकर बोला तो रज़ा ख़ान ने इसकी जानिब देखा। मेरी गलतियाँ, शट अप, वो धाड़ा क्यों वो बर्दाश्त करता है ये सब? क्या इसने बर्दाश्त करने का ठेका लिया था? इसके धाड़ने पर रज़ा साहब भी उठे। क्या-क्या ड्रामेबाज़ी लगा रखी है यहाँ किसने अपनी इस शक्ल का मुझे दीदार कराने आए हो? तुम्हारी बेटी भागी है ना तो खुद ही आ जाएगी। अपने इस यार के साथ कुछ दिन अय्याशी करके मुझे सुकून का साँस लेने दो। अपनी शक्ल भी ना दिखाया करो। वो भी बेकाबू होने लगा। जबकि कोई बैत नहीं थी, वो अपने अंदर छुपा परसों का उबाल आज ही रज़ा ख़ान पर निकाल दे। तभी सफदर ने इसको थामा। सर प्लीज़ कॉम डाउन। जबकि शामिर ने झटक कर ख़ुद को छुड़ाया। नफ़रत का छोटा लफ्ज़ है जो मुझे नफ़रत छोटा लफ्ज़ है जो मुझे तुमसे है, इसका कोई पैमाना नहीं रज़ा। अगर मेरे बस में होता तो मैं इस हकीकत को कब का मिटा चुका होता कि तुम जैसा नामाकूल शख्स मेरा बाप है। वो गुस्से से घूरते हुए इनकी जानिब देखने लगा, जिनकी आंखें अश्कबार थी। मेरी हरम को ढूंढो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। बलाखिर रज़ा ख़ान को सब जवाब दे गया और वो फिर से इसके आगे हरम के लिए भीख मांगने लगे। जबकि शामिर को के दिल को एक बार फिर किसी ने आरे के नीचे दिया था। वो बेटा था इनका, इनके सामने खड़ा था, इनके वजूद के हिस्सा जिसे जिससे हिस्से की मोहब्बत, बल्कि इसे छोड़ दो, इसके दो छोटे बहन भाइयों के हिस्से की मोहब्बत वो किसी और की झोली में डाल रहे थे। तो आज भी इन्हीं की इसकी परवाह थी। न जाने क्यों शामिर खान ने गुस्सा दिखाकर अपनी अंदरूनी जज्बातों को इनके सामने पामाल किया। वो अनाज से पीठ पर फेर गया कि अगर मज़ीद इनके सामने खड़ा होता तो ज़रूर कोई गलत कर बैठता। मिल जाएगी, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इसने आराम से कहा। रज़ा साहब ने चौंक कर इसकी जानिब देखा जो पीठ मोड़े खड़े थे। सफदर, इस आदमी को अब मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ मत आने देना। इसे सदर से कहा और सदर साहब को बाहर ले गया। जबकि रज़ा ख़ान का दिमाग यकदम जैसे किसी अंधेरे कुएं से बेदार हुआ था। जबकि दूसरी तरफ शामिर खान ने जानबूझकर ये पत्ता फेंका था। छुपन छुपाई तो इसे बचपन से ही नहीं पसंद थी। डंके की चोट पर करना था जो करना था। बीबी, ये कपड़े साफ करके गए हैं, आपको ये लिबास तब्दील करवाऊँ? आप पहले ये जूस ले लें, फिर ये ड्रेस बदल लीजिएगा। सकीना ने सुकून से इसकी जानिब देखा, जो अपना प्यारा सा चेहरा फुलाए बैठी थी। कहाँ है तुम्हारे साहब? इससे सवाल किया। जी वो तो थाने गए हैं, सकीना ने बताया। एक तो दियो, ऊपर से पुलिस वाला, जानती भी हो उन्होंने रात को क्या किया था। और अब मैं इनके लाए हुए कपड़े पहनूं? कभी नहीं। चाचू के पास जाना है, बात ख़त्म। इसे दो टोक अंदाज में कहा। बीबी हरम, बीबी आप तो बहुत प्यारी है, मगर साहब गुस्से के बहुत तेज़ हैं। अगर मैंने अपना काम पूरा ना किया तो सीधी बंदूक मारेंगे। बीबी प्लीज़ ये जूस पी लें। सकीना बेबसी से बोली तो हरम ने अपनी चालाक बड़ी बड़ी आंखों से इसे देखा। ओके, एक शर्त पर। वो उठी तो उसकी साड़ी जिसका पल्लू कभी संभल आया ही नहीं था नीचे कदमों की सैर करने लगा। जबकि सकीना को तो इसको हुस्न से आंखें चुरा गई, जिसे परवाह भी नहीं थी। मगर दो आंखें जो ये नज़ारा देख रही थी, इनमें गुस्से की लहर एक बार फिर उठी। कैसी शर्ट बीबी? सकीना ने कहा तो इसने इसकी जानिब देखा। तुम मुझे फ़ोन पर चाचू से बात करा दो, फिर मैं भी तुम्हारी बात मान लूँगी और फिर तुम्हारे वो उखड़ू साहब को भी नहीं पता चलेगा। हरम की बाजें इस शानदार प्लानिंग पर खिल रही थी, जबकि सकीना पुरजोश दिखाई दे रही थी। जबकि दूसरी जानिब शामिर ने सेल बंद किया और अपना वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर फ़ौरन इसी पल वहाँ से निकला। सफदर इसकी जल्दबाजी पर हैरान था। सर, मिनिस्टर साहब ने आना है, ज़रूरी मीटिंग है, आपको याद है ना? इसने कहा तो शामिर बगैर जवाब दिए अपनी गाड़ी में बैठ गया। इस वक्त हरम के पास पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी था, वरना रज़ा खान का शाह पैलेस तक पहुंचना इतना भी मुश्किल नहीं था। और वैसे भी वो पहले ही दाना डाल चुका था इसके आगे। हरम सकीना को जब सकीना हरम को घूर रही थी, ठीक है बीबी, अब अपना मोबाइल फ़ोन आपको देगा, मगर इससे पहले आप अपना लिबास बदलेगा और फिर कुछ खाएगा। सकीना ने कहा तो हरम ने एक पल में हामी भर ली। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी कि वो चाचू से बात करेगी, फिर इस हैंडसम दियो की जंगल से भाग जाएगी। वो जल्दी से सकीना से ड्रेस लेकर वॉशरूम में चली गई, मगर पहले इसे सकीना का दिया हुआ जूस पिया ताकि सकीना पर पक्का इम्प्रेशन पड़ जाए, और फिर फ़ौरन बाथरूम में बंद हो गई। जबकि सकीना नीचे चली गई और जब वो वापसी वॉशरूम से निकली तो ट्राउज़र शर्ट में ख़ुद को अजूबा ही लगी, क्योंकि इसने कभी पहना नहीं था। और ऊपर से इस शर्ट का गला इतना बड़ा था कि कंधों से लटक रहा था, जिसे वो बार बार ऊपर करती। और दुपट्टा भी था। इसने दुपट्टा बेड पर फेंका और गले की थोड़ी सी अकल चलाकर डोरियां बंद की।
अब वो कुछ मुनासिब लिबास लग रहा था। वो जल्दी जल्दी ब्रश फेर कर बालों में नीचे आई तो सकीना इसके लिए नाश्ता लगा रही थी, जबकि सकीना का मोबाइल भी वहीं पड़ा था। इससे झटपट पहले मोबाइल उठा लिया और जल्दी से नंबर डायल किया। अभी वो कान से लगाती कि किसी ने फ़ोन झपट कर इसके कान से दूर किया और एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया, जिसके बाद हरम सुन्न होकर रह गई। तुम्हारी खाल उतार लूँगा अगर तुमने मेरे साथ कोई चालाकी की भी तो। वो इतने गुस्से से चीखा कि हरम को अपना दिल बंद होता महसूस किया। और शामिर ने जो पहले से भरा हुआ था इसने फ़ोन की दीवार पर मार कर तोड़ दिया, जबकि सकीना की जानिब देखा जो खुद काँप रही थी। अगली बार जा पहले इसमें दिखाई नहीं देना, वरना मेरे कुत्तों को तुम्हारा गोश्त बुरा नहीं लगेगा। वो धाड़ा तो सकीना तो बोतल की जिन की तरह गायब हो गई, जबकि हरम अब भी वैसी खड़ी थी। शामिर ने इसकी जानिब देखा, जिसकी आंख से अब टप टप आंसू गिर रहे थे, जबकि चेहरे पर थप्पड़ का निशान बड़ा वाज़ेह था। अचानक इसे सब याद आया तो जैसे शामिर को कोई होश में ले आया। इसने हरम पे किसी भी किस्म के तशद्दुद से खुद को बुरी तरह रोका था, मगर अचानक ये क्या हो गया था इससे। इसने गहरी सांस भरी और उसकी जानिब देखा जो रुख मोड़कर ऊपर कमरे की जानिब जा रही थी। इसे कुछ हुआ कि ना वो इससे लड़ी और ना कोई बात की। हरम, शामिर ने पुकारा तो हरम के कदम रुक गए। इसके वजूद में हल्की हल्की सिसकी थी। जब मैं मना कर चुका हूँ तो तुमने इस शख्स को फ़ोन करने का सोचा भी कैसे? शामिर ने जैसे कुछ बात करना चाही। इसका लहजा नॉर्मल था क्योंकि माफ़ी का तो कोई स्कोप ही नहीं था। आपकी कैदियों के साथ ऐसा ही सलूक होता है और मालिक कैदियों से बात नहीं करते। वो काँपती आवाज़ में इसकी बात से अलग ही बोली। ये शायद जो इसके दिमाग में चल रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। तो मतलब कहीं नहीं जा सकती तो तुम क्यों इस घटिया इंसान के पास जाना चाहती हो? वो झंझला कर बोला तो हरम पलटी। इसकी आंखों में सुर्खी और लतादार आंसू थे, जबकि दुपट्टा गले से गायब था। वो बाल खुले हुए थे और उसके दिए हुए लिबास में वो बहुत प्यारी लग रही थी, मगर यहाँ नौकर भी होते थे, इसका दुपट्टा ही गायब था। शामिर को खुद को हर हाल में कंट्रोल करना पड़ा। चलो ऊपर, इसने कहा। नहीं जाना मुझे, वो तड़क कर बोली तो अगले ही लम्हे शामिर ने इसको गोद में भर दिया। वो छुई हुई सी इसके सीने से लगी तिलमिला रही थी। जहर लगते हैं मीरा आप, मुझे बहुत बुरे कातिल लोफर गंदे अखरूदी हो। वो चिल्ला रही थी, जबकि मीर के कान पे जूम भी ना रहेंगी। ओ और उसे लिए कमरे में आ गया और बैठ के नज़दीक आ गया। आइंदा तुम्हें कभी नहीं मारूंगा, ये आखिरी बार था। इसने आहिस्तगी से इसके गालों की जानिब देखते हुए कहा, जबकि इसके देखने के अंदाज पे हरम का दिल धड़क उठा। छोड़े मुझे, हरम ने इधर उधर देखते हुए कहा। कहा तो मीर ने इसे एहतियात से बेड पर लिटा दिया और उसके गालों पे झुककर वो शायद कोयम रख रहा था। हरम तो साकित रह गई, जबकि इसके होठों का सफ़र गालों से गाल से होते हुए अब लबों की जानिब था और एक बार फिर से इसकी सांसों को भी इसने कैद जड़ लिया, जबकि हरम के बाजू को अपनी गर्दन के गिर्द खुद हायल किया। हरम बेदम अपनी धड़कनों के शोर को सुन रही थी। वो अपनी मर्जी से कुछ देर में दूर हुआ तो हरम की निगाहें बंद देखकर इसे वो खूबसूरत मुजस्समी ज़रूर लगी, मगर दिल में किसी भी किस्म के कोई जज्बात न थे। आइंदा दुपट्टे का ख्याल रखना। मेरी बीवी हो तुम, रज़ा ख़ान की भतीजी रही। मेरे नाम, मेरी पहचान और मेरी पसंद को मत भूलो। तुम्हें इन्हीं रंगों में ढलना है जो मुझे चाहिए। इसने इसके कानों में जहर फूंक दिया। हरम ने अब भी आंखें ना खोली तो शामिर ने इसके माथे का बूसा लिया और वो उल्टे कदम पलट गया, जबकि हरम इसकी खुशबू में बहक चुकी थी। बड़ी बीबी, ये लड़की आपसे मिलना चाहती है जी। मैंने मना किया था कि शामिर साहब ने किसी को भी आने जाने से मना किया था। चौकीदार ने ब्रेस ने परेशानी से कहा तो अम्मा ने इस लड़की को देखा जो जीन्स और कुर्ते में बालों का जोड़ा बनाए खासे बुरे हुलिये में थी। तुम जाओ, अम्मा ने चौकीदार को भेजा और वनीज़े की जानिब देखा, जिसकी सुर्ख आंखें और चौंका देने वाला हुस्न बहुत खूब था। बैठ जाओ बेटा, उन्होंने कहा तो वनीज़े में नफ़ी में सर हिलाया। जी नहीं आंटी, मुझे नहीं बैठना। जिस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई हो वो बैठकर करेगी भी क्या? बस इतना कहते हुए चीखों से रोने लगी, जबकि अम्मा एकदम परेशान हो उठी। क्या हुआ बेटा? इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? आपके आपके बेटे ने लूट लिया मुझे, तबाह कर दी मेरी ज़िंदगी। मेरे बदन पे ये निशान देखे और बताए मुझे कि आपके बेटे से मोहब्बत का ये सलूक होना चाहिए था मेरे साथ। इसे चिल्लाते हुए सुर्ख निशान अपनी गर्दन पर दिखाए तो अम्मा शिद्दत इसकी जानिब देखने लगी। क्या बोली जा रही हैं आप? उन्होंने हैरत से पूछा तो उनके कदमों में गिर गई। बहुत मोहब्बत करती थी मैं शहरों से, मगर मैं नहीं जानती थी वो हवस का पुजारी है। वो बुरी तरह भलक रही थी, जबकि मुकाबिल अपने कदमों पर कांप गई। तुम गलत कह रही हो, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने साफ इनकार किया और अपने कदम पीछे लिए तो वनीज़े ने इनकी जानिब देखा।
کوئی لڑکی اپنی پارسائی پر ایسا الزام نہیں لگاتی۔ سمجھے آپ میرے بارے میں انصاف سے فیصلہ لیں، مگر افسوس آپ کو ایک معصوم لڑکی پر ہوئے ظلم سے زیادہ اپنے بیٹے کی پارسائی کی فکر ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتی آنسو صاف کرتی اٹھی۔ اماں کا وجود جیسے آندھیوں کی زد میں تھا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے، مگر یہ بھی بات بجاتی کہ کوئی بھی لڑکی اپنی ناموس اپنی عزت اپنے منہ سے کبھی نہیں کرتی۔ اماں صوفے پہ ڈھانسی گئی، جبکہ ونی سے ایک نظر ان کو دیکھ کر پلٹنے ہی لگی کہ انہوں نے اس کو پکارا، رک جاؤ۔ ونیزے نے ترچھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ رک جاؤ، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ یہ سب میرے بیٹے نے کیا ہے؟ انہوں نے آخری امید کے تحت اس کی جانب دیکھا، جس کی سرخ آنکھیں انہی پر تھیں۔ نہیں کوئی ثبوت، نہیں میرے پاس کوئی ثبوت۔ ایک ماں کا اپنے بیٹے پر سے یقین نہیں اٹھا سکتا۔ اس کی آواز روند گئی، جبکہ اماں کا پل دو پل میں جیسے وجود ہل سا گیا۔ میرے پاس اس ثبوت کے سوا کچھ نہیں کہ لاسٹ کال آپ کے بیٹے نے اپنے نمبر سے مجھے کی تھی، اور اس کے بعد میں نے انہیں کی، اور انہوں نے مجھے اپنے اس گھنونے ارادے کا شکار کیا۔ اسے نم آنکھوں سے موبائل کھول کر اماں کے سامنے شہروز کا نمبر کھولا تو انہوں نے ایک نظر نمبر کی جانب دیکھا، اور بس وہی ان کا اعتبار اس پر سے اٹھ گیا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئیں، جبکہ طبیعت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ونیزے خاموشی سے ان کے چہرے کے زاویے دیکھ رہی تھی، جبکہ اماں انہیں کانپتی آواز میں شاہنزے کو پکارا۔ شاہنزے، وہ جو دروازے کی اوٹ کی بھیگی سرخ آنکھیں لیے کھڑی تھی، باہر نکلی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ ونیزے نے ایک نظر شاہنزے کو دیکھا اور دوبارہ اماں کی جانب دیکھا۔ اسے کچھ فیصلہ ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ شامر، شہروز، دونوں کو بلاؤ ابھی۔ انہوں نے حکم صادر کیا تو شاہنزے نے سب سے پہلے شامر کو کال ملائی اور اس کو اماں کا پیغام دے کر اس نے سے شہروز کو کال ملائی اور اسے بھی اماں کا پیغام دے کر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ چاروں جانب سناٹا چھا گیا، اور پھر تقریباً 20 منٹ بعد وہاں آگے پیچھے گھر میں 2 گاڑیاں رکی اور دونوں ایک دوسرے کو حیرانگی سے دیکھنے لگے۔ آخر معاملہ کیا تھا جو اماں نے اس طرح ان دونوں کو بلایا تھا؟ شامر اس کو ایک نظر دیکھا فوراً اندر دوڑا۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، کہیں اماں کو تو کچھ بس یہی بات سہانے روح تھی۔ جیسے ہی وہ دونوں لاؤنج میں داخل ہوئے تو اماں کو صوفے پہ، جبکہ شاہنزے کو ان کے پاس کھڑا دیکھ کر شامر نے ان کے نزدیک پل میں پہنچا۔ اس نے کسی اور کو وہاں دیکھنے کی زحمت نہ کی، جبکہ شہروز ونیزے کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اماں آپ ایسے کیوں بیٹھی ہیں؟ سب ٹھیک ہے نا؟ ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، جبکہ ان کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹا۔ میرا مان ٹوٹا ہے، ہار جاؤں گی میں، بس اتنا ہوا ہے، وہ بولی اور شہروز کی جانب دیکھا جو معاملہ سمجھنا چاہ رہا تھا، اور اس نے ایک قدم ونیزے کی جانب بڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولا تو شامر نے اب ونیزے کی طرف دیکھا۔ بتایا ہے میں نے سب سچ تمہاری ماں کو، اس نے کہا تو شہروز نے غصے سے اس کا بازو جگڑ لیا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ جب میں معاملہ وہیں ختم کر آیا تھا تو یہاں مرنے کی کیا ضرورت تھی؟ شہروز کچھ اور، جبکہ ونیزے کچھ اور، اماں کچھ اور سمجھی تھی، اور شہروز کی یہی بے وقوفی ہر بات پر مہر لگا گئی تھی۔ اور اماں نے شہروز کی جانب دیکھا۔ چھوڑ دو اس کا ہاتھ، وہ بلند آواز میں بولی تو وہاں سب خاموش بلکہ دنگ رہ گئے۔ ان کی ماں بڑے دھیمے لہجے والی خاتون تھی، کبھی انہوں نے اونچی آواز سے بات نہیں کی تھی، اور اب شامر خاموشی سے معاملہ دیکھ رہا تھا، جبکہ شاہنزے رو رہی تھی اور ونیزے کے چہرے کا اطمینان قابل دید تھا۔ اماں، شہروز اس سے پہلے کچھ اور بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے نزدیک آ گئی، اور پھر سب سے غیر متوقع حرکت ہوئی جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا، اور نہ آج سے پہلے کبھی ایسا ہوا۔ اماں کا ہاتھ اٹھا اور شہروز کے گال پر اپنی انگلیوں کا نشان چھوڑ دیا۔ وہ ورطہ حیرت میں گم تھا، جبکہ شاہنزے نے روتے ہوئے منہ پر جہاں ہاتھ رکھا وہیں ونیزے بھی اپنے اس اقدام پر ڈگمگائی تھی، جبکہ شامر یوں ہی کھڑا تھا۔ کیا بتانا چاہتے ہو؟ کیا کہو گے اب تم اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر کے؟ تم نے مجھے مار دیا شہروز، مجھے مار دیا۔ مجھے نہیں پتہ تھا کہ تم اپنے باپ سے بھی زیادہ گئے گزرے ہو۔ اس نے مجھے اپنے نکاح میں لے کر برباد کیا، اور تم نے کسی کو محبت کے جال میں پھنسا کر برباد کر دیا۔ یہ منحوس کام کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہ کانپے کہ آگے تمہاری آگے جوان بہن بھی ہے؟ اماں روتے ہوئے اسے ایک کے بعد ایک تھپڑ مار رہی تھی، جبکہ شہروز انہیں کچھ کہنا چاہتا تھا جس کو وہ سننے کے لیے تیار نہ تھی۔ اماں بلاخر شامر نے آگے بڑھ کر ان کو تھام لیا اور وہ اس کے سینے سے لگ کر بری طرح رو دی۔ یہ سب کیا ہو گیا شامر؟ یہ میرا شہروز نہیں ہے۔ وہ ان کو سینے سے لگائے شہروز کو خون آشیم نظروں سے گھور رہا تھا۔
भाई अम्मा गलत समझ रही और ये दो कौड़ी की लड़की जो झूठ वो बेकाबू होता। वनीज़े पर झपटा के शामिर ने इसको गिरबान से पकड़ लिया और पीछे करके वनीज़े की जानिब इन्हीं नज़रों से देखा और उस लड़की को पहचान चुका था। सिर्फ तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे भाई का ताल्लुक तुमसे ज़रा सा भी था? इसने वनीज़े की तरफ देखा जो शामिर से खुद खौफजदा हो चुकी थी। कांपते हाथों से इसने वो सबूत शामिर के सामने कर दिया, जबकि वो जानती थी कि ये शख्स सब कुछ समझ जाएगा और लाजमी इसको सलाखों के पीछे फेंक देगा। शामिर ने वनीज़े के नंबर पर शहरोज़ की कॉल देखी तो वो अगले लम्हे शहरोज़ की जानिब पलटा। तुम इतने नीचे हो, मुझे तो तुम्हें भाई समझते हुए भी घिनारी है, वो कर रहा है। तो शहरोज़ ने इस पे एतबार पे गमज़दा होकर रह गया। लाला, बकवास बंद करो अपनी और अभी इस लड़की को अपनी इज्जत बनाकर कुफ़ार अदा करो। इस एहसास एक गलती का और जो तुमसे हुई है। शामिर के लहजे और बात में जैसे मुख्तलिफ अंदाज साहब, जैसे वो इसे इस दिन की दो कॉल्स को गलती गर्दान करके इससे कुफारा अदा करवा रहा था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। शहरोज़ भी एक एक लफ्ज़ चबा कर बोला। ठीक है, निकल जाओ मेरे घर से, शामिर ने संजीदगी से कहा और पीठ मोड़ ली। लाला, आप सब जानते हुए इस लड़की की हिमायत कर रहे हैं। ये लड़की चाहती है यही थी और आप शहरोज़ तिलमिला ही गया। भला अपनों के बगैर वो एक दिन भी गुजार सकता था? शहरोज़ खान, तुम्हारा नफ्स नफ्स इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। अगर इस लड़के के पास एक सबूत भी तुम्हारी जानिब से उठाए गए अक़दाम का ना होता तो फिर मैं इसे अच्छे से बताता कि शामिर खान के भाई पे उंगली उठाने का अंजाम होता क्या है। वो बुलंद आवाज़ में बोला तो शहरोज़ ने फाड़ खाने वाले अंदाज में वनीज़े को देखा जो इत्मीनान से खड़ी थी। मैं शादी बिल्कुल नहीं करूँगा, वो बोला तो अम्मा ने इसकी जानिब देखा। तो हमारे साथ ये रहेगी, तुम नहीं। तुम्हारा गुनाह आखिर को हमें ही छुपाना है। अम्मा, आप गलत समझ रही हो, ये दोगली झूठी लड़की। बस बस शहरोज़, बस कर दो। आखिर कितनी इसे गालियाँ देकर अपना पलटा भारी करोगे? आखिर तुम मर्द होना और मर्द औरत से ज़्यादा मजबूत है तो अपनी ताकत की बिना पर वो कुछ भी करता फिरे। ये कोई कानून नहीं। अगर दुनिया में ये होता भी रहा तो मेरे घर नहीं होगा। अभी के अभी तुम्हें इस लड़की को अपनी इज्जत बनाना होगा ताकि तुम्हें एहसास हो इज्जतें लूटना आसान नहीं होता, इज्जतें बनाना क्या होता है। उन्होंने हतमी फैसला करके शामिर की जानिब देखा जिसने सदर को कॉल की। 3 लफ्ज़ बोलकर शहरोज़ बिल्कुल खामोश होकर बैठा था, जबकि अम्मा इससे बगैर बात किए वनीज़े और शानज़े को अपने साथ ले गई थी। शामिर इसके सामने सोफ़े पे बैठा था। मुबारक हो तुम्हें निकाह, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। तो शहरोज़ ने सुर्ख आंखों से इसकी जानिब देखा। मेरे साथ ज़्यादती की है आपने लाला, वो बोला तो कांसी टूट फूटती लहजे में। नहीं मेरे यार, या ज़्यादा तेज़ ज़्यादती तो इस लड़की की ज़्यादती तो इस लड़की के साथ होगी। अब बताओ इसे शहराज खान पर इल्ज़ाम का अंजाम पता तो चले इसे कि जो इल्ज़ाम इसने तुम पर लगाया वो हकीकत में होता क्या है। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। अगर तुमने वो गलती की भी होती मैं तब भी तुम्हारे साथ होता, मगर मुझे इस लड़की की आंखों में गुरूर का नशा तोड़ना था। इसे लग रहा है वो जीत गई है, मगर तुम इसे बताओगे कि हार क्या होती है। ये दुनिया हमारे से खेलने के लिए नहीं बनी यार। इस दुनिया को अपनी ताकत के नज़ारे कराना ज़रूरी है। तुम इसकी बात को हकीकत का रंग दो। अम्मा को मैं संभाल लूँगा, बस तुम बात कर लेना इससे इनसे। बाकी इस लड़की पे अभी कुछ मत खोलना। मुझे उम्मीद है तुम सब समझ रहे हो। वो सुकून से इसे सब समझाता गया, जबकि शुरू सब समझते हुए इस बात में सर हिलाकर अब कदरे रिलैक्स था। शानज़े ने भी सब देखा, वो भी मुझे गलत समझेगी। शहरोज़ ने अफसोस से कहा, तुम्हें पता है शहरोज़, जब मैं 8 साल का तो एक दिन हमारे घर में पानी के सिवा कुछ नहीं था, जबकि हम चारों एक दिन के भूखे थे और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई एक और दिन ज़्यादा भूखे रह कर गुजारे। मैं घर से ऐसे ही निकल गया तो हमारे घर के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसमें काफ़ी मज़दूर काम कर रहे थे। मैंने इनको देखा और वहाँ एक आदमी जो चेयर पर बैठा था इसके पास चला गया। मैं इतना कमज़ोर महसूस कर रहा था कि वहाँ इसके पास जाकर रोने लगा। आज वो बेबसी के आंसू याद करके मेरा खून खौल उठता है। वो आदमी मुझे देखकर हंसने लगा। एक और गरीब, इसने बड़े तनफ़ुर से कहा और बग़ैर कुछ सुने मुझे काम पर लगा दिया। शायद वो जानता था मेरी मजबूरी। मैंने पूरा दिन वहाँ काम किया और जब रात घर आया तो अम्मा दरवाज़े पे बेहाल बैठी थी। कितनी ही गुर्बत थी, मगर वो हम में से किसी को खोना नहीं चाहती थी। मुझे देखकर वो जितना खुश है, इतना खुश तो तुम दोनों मेरे हाथ में खाने का चंद सामान देखकर हुए। और फिर जब हम खाना खाने बैठे तो तुम जल्दी से खा गए अपनी रोटी। वो हंसा, आंखें सुर्ख, जबकि फुल बिल्कुल भर चुका था। पेट जैसे वो अपनी मर्जी को बोझ निकाल देना चाहता था। अम्मा ने तुम्हें अपनी रोटी दे दी और तुम वो भी खा गए। शहरोज़ की आंख से आंसू टूटा तो शहमी ने वो आंसू साफ किया, मगर तुम्हारी भूख ख़त्म ना हुई और तुम रोने लगे।
अम्मा बेचैन होकर खुद भी रो दी, जबकि मैं इस बात पर अफसोस कर रहा था कि मैं क्यों इतनी जल्दी खा गया। तब शांति ने तुम्हें अपनी रोटी दी और तुम्हें चुप कराया। हम एक दूसरे के लिए हैं, यकायक दूसरे की खुशी के साथ ही। ये दुनिया हमें अलग नहीं कर सकती, ना वो तुम्हें गलत समझेगी और ना अम्मा। बस मुझे यकीन है तुम सब ठीक कर दोगे। इसने शहरोज को सीने से लगाया और उसके शाने थपथपाए तो वो इस बात में सर हिलाने लगा। कहाँ है वो? ये क्या बात हुई? कोई अपने कैदी को यूं छोड़कर जाता है? मैं भाग भी सकती हूँ। हरम ने मुंह बनाकर सकीना की जानिब देखा तो सकीना को एकदम गहरा सांस भरकर रह गई। हरम बीबी, फिर आप अब तक भागी क्यों नहीं? वो आजिज़ आकर बोलते। हरम ने गुस्से से इसके बाजू में चुटकी काट दी। तुम जानती हो वो मेरे शौहर हैं, वो बोली तो सकीना हाथ हिलाकर समझने वाले अंदाज में सर हिलाने लगी। तो बीबी, ये तो फिर आपका घर हुआ और अपने घर में खाने से कौन मुंह मोड़ता है? सकीना ने इसे ट्रैप किया तो वो कुछ सोचते हुए सर हिलाने लगी। ठीक है, मैं खाना खा लेती हूँ, मगर मैं अब बोर हो रही हूँ तो मैं क्या करूँ फिर? हरम ने सकीना की तरफ देखा। बीबी, आप टीवी देख लें, सकीना ने मशवरा दिया। हाँ, ये ठीक है, तुम इतनी बुरी नहीं हो, अच्छी हो। चलो चलो फिर। वो कमरे से निकली और भागती हुई सोफे पे बैठ गई, जबकि सकीना ने इसके आगे खाना चुन दिया। वैसे सकीना, तुम खासी ढीठ भी हो, इसे आराम से चाउमीन खाते हुए कहा। सकीना तो अश अश कर उठी। जी जी बीबी, क्यों? इसने पूछा तो हरम हंस दी। उन्होंने तुम्हें निकाल दिया था, तुम फिर आ गई। वो अब खुलकर हंसने लगी। जी, से निकालना तो नहीं कहते ना। सकीना कुछ शर्मिंदा भी हुई। अच्छा अच्छा ठीक है, हरम ने कहा और सकीना के गिरबान पर नज़र गई जहाँ इसका मोबाइल था। कितनी गंदी हो तुम! हरम ज़ोर से चीखी, जबकि सकीना उछल पड़ी। ये कौन सी बला ले आए थे शामिर साहब? क्या हुआ जी? वो नासमझी से बोली। ये तुमने कहाँ मोबाइल लगाया हुआ है? निकालो इसे। वो बोली, जबकि इसके जहन ने एक बार फिर तूफ़ानी आइडिया सोच लिया था, ये फरार होने का। सकीना ने मुंह बनाते मोबाइल निकाल के इसके सामने टेबल पर रख दिया और हरम को खाना खाते हुए देखने लगी। हरम सुकून से खाना खा रही थी, जबकि सकीना ने सामने लगी एलईडी खोल दी। एलईडी पे न इंग्लिश मूवीज़ का एक अंबार था जो सकीना के सर पे से गुजर रहा था, जबकि हरम भी कुछ नज़र डाल लेती, मगर इसकी सारी तवज्जो सकीना के मोबाइल पर थी। सकीना, मुझे पानी दे दो, हरम ने कहा तो सकीना ने पानी के जग को देखा। मेरा मतलब है ठंडा। वो बोली तो सकीना उठकर किचन की जानिब चल दी। तो हरम ने जल्दी से मोबाइल उठाकर चाचू का नंबर डायल किया तो इसके हाथ में भी एक लम्हे को कांपे, जबकि नंबर डायल करते ही ऑपरेटर की आवाज़ उभरी जो साफ वाज़ेह लफ्ज़ों में कहती कि आपके मोबाइल में रकम नहीं। इसने मोबाइल को शिद्दत से घूरा, दोबारा टेबल पर पटका इसने सामने से आती सकीना को घूरा तो सकीना ने बगैर तवज्जो दिए पानी इसके सामने रख दिया और दोबारा रिमोट लेकर वो एलईडी में मसरूफ़ हो गई, जबकि हरम की पलकें भीग गईं और इसने गुस्से से पानी उठाकर पीने लगी। बहुत बुरी हो तुम सकीना, इसने सोचा और पलकें साफ करने लगी। वो दोबारा खाना खाने लगी, जबकि सकीना ने एक रोमांटिक इंग्लिश मूवी के सीन पर चैनल रोक लिया। सकीना बहुत दिलचस्पी से देख रही थी, जबकि अब हरम की भी तवज्जो इसी जानिब चली गई और वो मुँह खोले सामने चलते नज़ारों का मुलाहिज़ा करने लगी। चंद सेकंड ही गुजरे थे कि लॉन्च में शामिर की गरजदार आवाज़ गूंजी, सकीना। इसकी आवाज़ सुनते सकीना जैसे करंट खाकर सीधी हुई, जबकि हरम का तो दिमाग अभी तक इसी लड़की के गिर्द घूम रहा था जो खासा बोल्ड सीन था और वो देख चुकी थी। ये क्या बकवास लगाए बैठी हो? वो धाड़ा, जबकि सकीना की किकी बन गई। हरम का निवाला अभी तक वहीं था, जबकि शामिर ने सकीना को बुरी तरह छाड़ दिया। अपनी हद में रहो तुम, हदें पार करने की ज़रूरत नहीं। वो गुस्से से बोला तो सकीना इससे माफ़ी मांगने लगी। साफ माफ़ कर दें, हम तो बस क्या तुम बस इंसानियत से घिर गई हो लगता है मुझे। निकलो यहाँ से अब। वो चिल्लाया तो वो वहाँ से गायब हो गई, जबकि अब लाउंज में शामिर और हरम थे। शामिर दनदनाता हुआ इस तक पहुँचा और हरम का हाथ पकड़कर इसको अपनी जानिब खींचा। बहुत शौक है तुम्हें ऐसे सीन देखने का? जिसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। नहीं नहीं मैं मीर, वो तो सकीना। हरम शर्मिंदा सी हो गई। क्या सकीना? वो गुस्से से बोला। इतना ही शौक चढ़ा तो चलो कमरे में अच्छे से नज़ारा दिखा दूंगा तुम्हें। वो बोला तो हरम की पलकें भीग गई। मैंने तो नहीं देखा, हरम ने मिनमिना कर कहा। आज के बाद तो मैं टीवी पर ऐसी कोई चीज़ देखते हुए ना देखूं। जो तुम्हें पूछना है, जो जानना है, मेरे पास आ जाना। अगली बार ख्वाहिश नहीं होगी कहीं और जाने की। वो बोला और उसका चेहरा मजीद करीब कर लिया। हरम के लब काँप रहे थे, जबकि पलकें मजीद भीग गईं। खूबसूरत हो तुम और मैं चाहता हूँ खूबसूरत ही रहो और तुम्हारी निगाह में सिर्फ मैं उतरना चाहिए और कोई नहीं। तुम्हारे दिल में भी शामिर का कब्ज़ा होना चाहिए, ना कि तुम अपने इस जलील चच्चा से मिलने या बात करने का बहाना ढूंढो। वो धीमी हरसोस आवाज़ में बताया गया, जबकि हरम आंखें उठाकर इसकी सूरत देखने लगी। करोगी ना प्यार मुझसे?
उसकी गालों पे उंगलियां चलाता उसकी आंखों में जादू उतारने लगा। हरम ने भारी सांस भरा। इसके लिए शख्स के सामने खड़ा होना सुहाने रूह था। बताओ हरम। शामिर ने इसकी कमर में हाथ डाल के इसे मजीद करीब कर लिया, जबकि हरम पत्ते की मानद कांप रही थी। इसका दिल चीख कर इकरार करना चाहता था, मगर जबान थी कि हिल ही नहीं रही थी। मैं मीर इसके लब फड़फड़ाए। मैं सिर्फ वो सुनना चाहूँगा जो मेरे कान सुनना चाहते हैं। इसने अपने कान हरम के लबों पर रख दिया, जबकि हरम की रूह फना होने के करीब थी। करोगी? बहुत करोगी ना? बहुत करोगी ना? वो किसी एहसास के तहत पूछ रहा था, जबकि हरम ने इसके सीने में मुंह छुपा लिया। इसके मुलायम चेहरे की हिद्दत शाह मीर के दिल में पहली बार पुरसुकून बारिश की फुहार की मानंद पड़ी।